प्रिय छात्रगण, आज के इस अंतर में इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी सरल व्याकरण मीन्स ग्रामर आइटम के बारे में देखा जाएगा। पिछले अंतरों में प्रथम वर्ष से संबंधित व्याकरण पाठ विषय के संबंधी भिन्न भिन्न प्रश्नावली का विश्लेषण किया गया। जैसे व्याकरण के अंतर्गत खंड ख के अंतर्गत ये कितने अंक के लिए होगा? 40 अंक के लिए होगा, जिसके लिए क्या देखा गया? प्रश्न संख्या 11 से लेकर कितना 16 तक प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत क्या देखा गया? पिछले अंतरों में 11, 12, 13, 14 और 15 के अंतर्गत होने वाले प्रश्नावली के कुछ भाग, जैसे वाक्य शुद्धता और उपसर्ग प्रत्यय के बारे में विश्लेषण किया गया। अभी इस प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत क्या देखा गया? लिंग और वचन के बारे में विश्लेषण करने मात्र से प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत का विषय समापन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा कि सूचना के अनुसार बदलना है। क्या बताएगा? सूचना के अनुसार बदलना जैसा बताएगा। इसके अंतर्गत 8 जो प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 6 मात्र करना है, जिसमें देखिएगा यहाँ पर वाक्य शुद्धता के संबंधी कुछ प्रश्न और उपसर्ग से संबंधी पहचानने का या उपसर्ग के निर्धारण करने का या कुछ प्रश्न होंगे, और प्रत्यय के संबंधी, लिंग के संबंधी, वचन संबंधी और काल के संबंध में भी कुछ प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत आपको इसी विषय संबंधी क्या है? वाक्य शुद्धता, उपसर्ग, प्रत्यय के संबंधी प्रीवियस यानी कि पिछले अंतरों में विश्लेषण उदाहरण समेत विश्लेषण किया गया। अभी इसी प्रश्न संबंधी लिंग, वचन, काल के संबंधी कुछ शेष भाग बचा है, जिसके अंतर्गत आज इस अंतर में क्या लिंग के संबंधी विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट the one of the grammar item. Here is for the standard of intermediate first year, those who are choice as a second language Hindi. Today's our topic is that grammar item, grammar only. What are the grammar parts are given in first year standard question paper? Means in this first year standard question papers second part asking the question number 11 to 16. How many questions are there? 6 questions. Out for how many marks? We explained that for the second part for 40 marks only. Okay. For the denomination of the 40 marks, already we are discussed in previous classes question number 11 to 14, and most probably the half of the part in 15 too. Means in question number 15th, here we go asking that correct the sentences as per asking that. Means such as per the hint, note. So in this question, the related correct the sentences, prefixes, suffixes, gender, number, and the tenses too. Tense too. Right. In previous class, we are discussing that 15th question number 15th, the 3 parts. That's correct the sentences. How to correct the sentence? What is the here exercise also we are do that exercise too. Here prefixes and suffixes, right? Here how to identify the prefixes and suffixes in Hindi language. So that's both these 2 part also you should practice in previous classes. Now remaining part that gender, numbers, and the tenses
what about these three parts? We are discussing out of them that one of the part that's the gender. In the gender means you are given the definition. You are for identification. Your examination is not asking that what is the definition of the gender in Hindi, but here that asking the what how many times the gender can be divided into how many parts, what are they. Here how to identify that the part in the gender in Hindi, you can be discuss the briefly here in this class. So see here the gender means यहाँ लिंग, इसको हिंदी में ही लिंग कहते हैं. हिंदी भाषा के व्याकरण के अंतर्गत मीन एज पर दैट हिंदी ग्रामर ने कुछ तत्वों से संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है. मीन जैसा in the Hindi grammar the few of the terms will be changed as per the noun words. Yet changing of the noun words ने उसको संज्ञा शब्दों के विकार तत्व कहा जाता है. मीन दोज आर चेंज द टर्म ऑफ इन व्हाट द नाउन सो नोन एज द जेंडर. मीन्स यार विकार तत्व कहा जाता है. विकार तत्व मीन्स change the changing item, changing the terms as per that the meaning in that pronouns. Here is a noun only. Okay, ये तत्व तीन प्रकार के हैं. What are the terms that change as per the meaning in the noun word? Means that is the gender, that's called in Hindi ling. This second one is the vachan, that means the number. Third one is karak as a prepositions. Both the three are there. Means out of them, that first item is that ling. Ling के संबंध यार टू या जो संज्ञा के जिस परिवर्तन से जिसका अर्थ के में जिस संज्ञा के जिस रूपांतर से पुरुष का शब्द का संकेत होता है उसे पुंलिंग कहते. और इसी तरह से जो स्त्री के संबंधी शब्द प्रयोग होने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तन किया जाता है. माने जिस लिंग और वचन के अनुसार यहाँ पर निर्धारण किया जाता है. जैसे पुंलिंग का परिभाषा जब देखा गया, जिन संज्ञा या शब्दों से पुरुष जाति का माने क्या बताया, पुरुष जाति का बोध होता है, तो वो जो शब्द पुल्लिंग जाति के अंतर्गत स्वीकारे तो वे शब्द पुल्लिंग कहा जाता है. मीन व्हाट इज द डेफिनेशन हियर इज गिवन एज ए मेल जेंडर. मीन्स the male gender means those terms in a noun indicate to that as a male gender, so known as a called as a male gender. Okay, यहाँ पर जिन संज्ञा शब्दों से इन्हें संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. ये नाम को बताने वाले शब्दों में पुंलिंग के संबंधी है तो पुरुषलिंग के पुरुषों का संकेत होता है तो वो पुल्लिंग है. जैसे बताया गया जिन संज्ञा शब्दों से मीन एज पर द नाउन में नाउन तो पुरुष जाति का बोध होता है इज इंडिकेट टू दैट मेल जेंडर इज नोन एज. या शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जो शब्द पुरुष के संकेत इंडिकेट टू दैट एज ए मेल जेंडर नोन एज पुंलिंग मीन एज ए जेंडर ऑफ द मेल. Okay, male gender. Just like your example is your kutta means the dog is the male dog. Your शेर, लड़का, बैल आदि mean these all are the terms of the male as a noun words, but it's a these terms the words are indicate to the male gender, so is known as a male. Okay, इसी प्रकार दिस स्त्रीलिंग के भाषा परिभाषा में जब देखा गया, स्त्रीलिंग की परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पुरुषलिंग के विलोमता से जिन संज्ञा शब्दों के से स्त्री जाति का बोध हो, यहाँ पे क्या है, जिन संज्ञा के पुरुष जाति का बोध हो, यहाँ पर
पुरुष के संबंधी बताया गया, तो यहाँ पर स्त्री जाति के संबंधी बताया गया। जाति का बोध हो या जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत स्वीकारें, मैंने इस प्रकार है जो फीमेल जेंडर के बारे में इंडिकेट करते हैं या संकेत करते हैं, तो वो स्त्रीलिंग के जाति के संबंधी प्रयोग होते हैं। मैंने आज के व्यक्ति वस्तु स्थान के संबंधी है ना, स्त्री और पुरुष के जाति संबंधी अर्थ में वो भिन्नता होती है ना, उसका उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पुरुष से संबंधी होता है तो पुरुषलिंग कहते हैं, स्त्री संबंधी प्रयोग होने वाले शब्दों को, संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग जैसा निर्धारण किया गया। जैसे अंतर्गत आते हैं तो वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ने कुतिया, जैसे यहाँ पे कुत्ता जो बताया गया, कुत्ता का विलोम जो होता है स्त्रीलिंग, ये कुत्ता पुल्लिंग है, पुल्लिंग का स्त्री विलोम तो स्त्रीलिंग होता है, कुत्ता कुतिया। यहाँ पे शेर जो बताया गया, शेर का विलोम शेरनी है ना, माने स्त्रीलिंग के रूप में ये शेर पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग प्रयोग में जो होता है शेरनी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार लड़का, लड़का जो होता है यहाँ पे लड़की का जो है, जैसे बताया गया लड़की, हाँ लड़की। जैसे यहाँ पे बैल बताया गया, बैल का रूप या स्त्रीलिंग रूप जो होता है ये पुरुष रूप है, तो ये स्त्रीलिंग रूप में गाय का रूप होता है। इस प्रकार कुछ अर्थ का रूप नमूना दिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार दिस ऑल आर दैट फीमेल मेल जेंडर, दिस द ऑपोजिट ऑफ द जेंडर इज द फीमेल जेंडर, दैट मीन्स द सेम टर्म्स आर टेकन हियर एग्जांपल। These are the male genders, that dog, male dog, तो female dog. Let's शेर यहाँ पे like this one, शेर शेरनी, लड़का लड़की, बैल गाय। मैंने इस प्रकार से अगर यदि आपको प्रश्न के अंतर्गत लिंग बदलिए तो ऐसा पूछा गया, गाय का शब्द का पूछा गया तो बैल जैसा, और यहाँ पे शेरनी जैसा पूछा गया तो शेर का, और इसी तरह से कुतिया के इस प्रकार ने कुत्ता, इस प्रकार ने राम, ऐसा प्रश्न आपको शब्द के रूप में नहीं पूछेंगे, बल्कि राम के पास एक कुतिया है ना, तो इस प्रकार राम के पास अंडरलाइन जो दिया गया, रेखांकित किया गया, तो वो वाला शब्द का लिंग बदलना चाहिए। कुतिया का विलोम जो होता है माने कुत्ता जैसा लिखना चाहिए। अने राम के पास एक कुतिया है तो उसका लिंग बदलते समय, अने लिंग बदलते समय क्या है, राम के पास एक कुत्ता है जैसा बताना चाहिए। इस लाइक इन्हें ये जो होता है प्राणीवाचक के लिए, मैंने लिविंग थिंग के लिए, that the gender and the numbers are not depend to that only living things, both each and every words that main numbers and genders are there, means here not only living things mean here a non-living thing also got the female, male and female gender, here genders there। and उसी प्रकार यहाँ बताया गया प्राणीवाचक के लिए नहीं बल्कि अप्राणीवाचक के लिए भी लिंग का निर्धारण होता है। जैसे बताए अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्रकृति द्वारा निश्चित किया जाता है, तो जिससे स्पष्ट होता है, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। जैसे बताए इनका लिंग निर्धारण स्पष्ट रूप से समझ में आता है। जस्ट लाइक हियर वी आर यूजिंग द टर्म दैट्स he is a boy, means you can be identified as the boy is the male gender, means is the naturally that we identified, I mean using the term as a boy, and is that girl, means here without any preparation, without any knowledge of the gender, we can use that here male and female we can decide it, mean it is naturally we use that without any sense. That's only they are given here, which terms are used in the noun here as a male and female gender, so you can be identified as per the pronunciation as a male gender, as a female gender. So यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो बिना सोचे समझे हमने जो कुछ सुना है, जो कुछ हम प्रयोग में लाते हैं, तो वो जो प्रयोग होने वाले शब्द से पता चल जाता है कि ये वाला पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन अप्राणीवाचक के लिए जैसा बताया गया, शब्दों का निर्धारण करने के लिए इनका लिंग निर्धारण से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है, जिनका निर्धारण अर्थ का आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर उसको जैसे
मिठाई, राम ने मिठाई लाया, माने राम मिठाई लाया, राम से मिठाई लाई गई। माने यहाँ पर मिठाई स्त्रीलिंग रूप है, मैंने पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये मिठाई ये स्त्रीलिंग कैसे हुई? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक भाषा के अंतर्गत जिसका विलोम रूप जो होता है मिठाई, यानी मिठाइयाँ, दिए गए शब्द के व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में, दिए गए शब्द के व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में जिस शब्द का वचन बहुवचन में या ए आ जाता है वो स्त्रीलिंग रूप है। एक नियम यह बताया गया, जो शब्द के व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में या ए आ जाता है तो वो स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त जो भी शब्द होते हैं वो पुंलिंग का रूप निर्धारण होता है, चाहे वो लिंग प्राणीवाचक हो या अप्राणीवाचक हो। जिसके लिंग वचन के या जिसके व्यवहारिक दिए गए शब्द के व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में या ए के साथ उसका उच्चारण होता है तो उसको बहुवचन का स्त्रीलिंग का रूप निर्धारण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ ये नहीं आता है व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में तो वो पुंलिंग होता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण किया जाने के संबंधी यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इसके अतिरिक्त विषय के बारे में देखेंगे।